Okay, so hey, hello everyone. My name is Aditya and I am an Android developer at Developer Student Clubs KIIT. So, we are a team of designers and developers who come together under one roof to create a community that inspires thousands of aspirant developers on the campus by helping them to learn and build projects. Okay. So for those of you who could not attend the last session, firstly, you can get those recordings on YouTube. Other than that, about study jams. So basically, these are community organized study groups for people to learn how to build Android apps in the Kotlin programming language using the curriculum provided by Google Developers. So about this curriculum, you will be told towards the end of the session. Okay. And also one more thing, in the last session, some people having problem with the not communicating in Hindi. So today we'll have that fine. Okay. हम हिंदी में बात करेंगे. So I hope किसी को कोई problem नहीं होगी. Okay. So before we start off with the session, कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि the first thing is that आपकी कोई भी doubts हो या queries हो, you can post all of them at Slido. You just need to go to slido.com, SLIDO, and type the code DSC Kite. Okay. And other than that, in these 3 days, we'll be working around basically starting off with Android development. For those of you, for I would say, जितने भी बिल्कुल बिगिनर्स हैं, न्यूबीज हैं, सबके लिए ये होगा. आपको कितनी भी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है या बिल्कुल भी नहीं है, यू विल बी फाइन विद दैट. ठीक है. लाइक कंटेंट विल बी लाइक तुम कहीं पर भी हो, किसी भी लेवल पे, तो ये चाहे तुम्हें कुछ भी नहीं आता, वेल यू कैन डेफिनेटली लर्न something from this. Okay. Other than that, towards the end of the session, like on the day 3, on 23rd December, uh, आपको एक टास्क दिया जाएगा. ओके. एंड उसके बारे में आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है, क्योंकि यू विल बी गिवन अ डिज़ाइन एंड बेसिकली यू विल हैव टू कंप्लीट दैट टास्क इन अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम. ओके. तो इसमें बेस्ट थिंग ये रहेगी कि जिसका टास्क सबसे अच्छा होगा, ओके, एंड उसकी ऐप प्ले स्टोर पे जाएगी. एंड दिस इज नॉट समथिंग लाइक आई एम मेकिंग फ्रॉम माई साइड, लाइक दिस इज बेसिकली फ्रॉम गूगल ओनली. तो जिसकी बेस्ट ऐप होगी हम सेलेक्ट करेंगे, उसको हम प्ले स्टोर पे पब्लिश करेंगे. सो जितने भी हैं, मतलब यू हैव दिस गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दिस. ओके. सो आई गेस we can start off. And one last thing is that we'll be having some quiz sessions, okay, like on today and tomorrow also. So उनमें भी जो अच्छा perform करेगा, well, we can give swags also, okay, whenever you come back to college. Okay. And quizzes will be interesting. मज़ा आएगा, जो भी हम इसमें सीखेंगे, whatever we will be learning, उसी में से होगा. Okay. So Ritik, can you give me just presenter rights? I guess I can present, I guess now. Just a second. Okay. So, Ritik, can you confirm if the screen is visible? Yes, Yes, it's sir. visible. Okay. So, let's get started. So, today is the day two. Well, basically, for the hands-on session, this is the day one, right? So, today we'll be going about UIs, user interfaces. Okay. अभी मैं बिल्कुल नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ कि मतलब क्या है, कैसे है. अभी एक छोटा सा फन सेशन होगा. उसके बाद हम इसके अंदर जाते हैं कि मतलब क्या भी जो भी है. ठीक है. सो जस्ट अ शॉर्ट ओवरव्यू. लाइक तुम फ़ोन चलाते हो, तो तुम्हें जो भी उसमें दिखता है, ठीक है, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग व्हाट्सएप और यू यूजिंग इंस्टाग्राम, तो तुम्हें उसमें जो भी दिखता है, देयर कैन बी लाइक सर्च बटन, देयर कैन बी सर्च बार, और यू हैव सो मेनी आइकन्स. ये सब यूज़र इंटरफेस में ही कवर होगा. सो बेसिकली आज हम यूआईज़ के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे कि आप कैसे अपने ऐप में उसका यूआई का कोड करते हो, लाइक हाउ डू यू गो अबाउट दैट. ओके. तो उसके बाद फिर लाइक कल हम उसमें जाएंगे कि उसमें कैसे हम फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड करते हैं, ये सब होगा. ओके. सो बिफोर वी गो to start off with the session, we have a small fun session. Okay. So I'll just present this. Okay. So guys, you need to go to slido.com and enter this code DSC kite. Okay. You can start off with this.
Okay. Okay, excited. More people please. आओ, जिसको भी है, जो भी फील कर रहे हो यार, सब बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज क्लासेस भी थी, राइट? सो guys can be exhausted, I guess. Two extra classes भी थी, nice. Okay, so Vikas, great, energetic, that's awesome. Okay, so ऐसे ही रहना, झकास बिल्कुल, मजे में, ठीक है। एंड मजा आएगा, मतलब यू जस्ट नीड टू हैव यू नो enthusiast हो तो सब मजा आएगा हर चीज में। ओके, so let's go further. Just one more question and then we can start off. Okay, so you just need to tell us why are you here. Okay, like everyone will have this different expectations from the session. Okay, like किसी को सिर्फ maybe कोई beginner हो, maybe कोई intermediate हो, या मतलब they're expecting, they have different expectations, right? मतलब तुम क्यों आए हो यहाँ, जरूर बताना, like just one question and then we can start. Yeah, great, nice. Hey, you love this thing, that's awesome. Great, great, great. That's awesome. Yeah. Okay. So, yeah. So one more thing. Uh, Before we start off, uh, I hope कि सबके पास Android Studio installed होगा. Well, we'll be going into the coding part in the later part. Okay. But installed है तो बहुत अच्छी बात है, तो साथ साथ you can code also, and जो भी फिर doubts होंगे हम ले सकते हैं साथ में. And otherwise, in just in case अगर आपके पास स्टूडियो नहीं भी इंस्टॉल्ड है, that's also fine, that's not an issue. Okay, बस समझते जाना जो भी है, that's quite interesting. So चलो शुरू करते हैं. Okay, so yeah, time to take off. Okay, so सबसे पहले तो prerequisites, मतलब बेसिक मैथ स्किल्स, लाइक तुमने 10th 12th में जितने भी मैथ स्किल्स किया है उसका भी बिल्कुल बेसिक, लाइक बहुत बेसिक, वो भी नहीं है, मतलब तुम तो 12th में कैलकुलस वगैरह पढ़ते हो, वो भी नहीं लगेगा, वेरी बेसिक वो भी. एंड दीज मैथ स्किल्स विल बी अप्लाइड व्हेन यू आर गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स एप्स. ओके, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है. देन कंप्यूटर लिटरेसी, अ कंप्यूटर, हेडफोन्स, इंटरनेट, एंड देन ऑफ कोर्स अ विलिंगनेस टू लर्न एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, अगर सीखना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली लर्न एनीथिंग, राइट? ओके, सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडे. सो आज हम इन तीन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जाएंगे. ओके, सो द फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरिंग लेआउट्स इन एंड्रॉइड. लेआउट्स क्या होता है, उसके साथ कैसे काम करते हैं, एंड और ये सब सीखेंगे. ओके, प्लेइंग विद व्यूज एंड प्रॉपर्टीज, व्यूज क्या होती है, ये सब बताया जाएगा आगे. ओके, तो मतलब अभी क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कुछ नहीं समझ आता है, होल्ड ऑन, इशू हम आगे देखेंगे. ओके, सो व्यूज, उनकी प्रॉपर्टीज, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. उसके बाद लास्ट में we'll be making a small Android app. बहुत छोटी सी ऐप होगी, like 10 minutes, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन we'll be going through the whole process कि कैसे क्या क्या बन रहा है. ओके, so let's start with exploring layouts in Android. Okay, so इसमें घुसने से पहले जो भी तुम्हारी एंड्रॉइड की ऐप होती है, राइट, कोई भी ऐप है, मतलब कोई भी ऐप का एग्जांपल ले लो तुम, जस्ट यू कैन हैव योर इमेजिनेशन, राइट? तो तुम्हें जो दिख रहा है, जो तुम उसमें कुछ भी देख रहे हो, दैट इज योर लेआउट पार्ट. एंड उसके बिहाइंड जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है, राइट, मतलब अगर तुम उसको टच करते हो, लाइक कोई बटन है, तुम बटन को टच करते हो तो उसमें कुछ फंक्शन परफॉर्म होता है, लाइक यू कैन गो टू अ नेक्स्ट पेज, और वहाँ पे कोई मैसेज आ सकता है. दोज आर द फंक्शनैलिटीज. तो वो फंक्शनैलिटी तुम्हारी कॉटलन में आती है, राइट? हम कॉटलन नेक्स्ट डे पे जाएंगे. तो अभी आज हम सिर्फ लेआउट्स पे बात करेंगे कि हाउ डू यू डिजाइन व्हाट यू सी ऑन योर एंड्रॉइड ऐप. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो व्हाट इज अ लेआउट एंड अ व्यू. ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक, आई हैव अ फोन. ओके, सो फॉर एग्जांपल यू हैव दिस
कार्ड, बेसिकली बटन्स होते हैं, बटन्स के बिहाइंड कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स भी क्या होते हैं हम देखेंगे। ओके, सो बटन्स जो हैं ये व्यूज होते हैं, ठीक है। लाइक दिस इज योर क्रेडिट कार्ड है, अगर इसकी कोई इमेज है सपोज, तो दिस इज बेसिकली अ व्यू। ओके, तो वैसे ये सब जो है ये सब व्यूज है। बट अब आता है कि लेआउट क्या होता है। तो बेसिकली व्यू को हम एक किसी चीज में डालते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एक कंटेनर होता है, ठीक है, कंटेनर में हम कुछ रखते हैं, ठीक है। तो जो चीज हम रखते हैं वो व्यू है, और जो चीज उसको कंटेन करा है दैट इज अ कंटेनर, राइट। सो लेआउट इसके बिहाइंड क्या, लाइक आई हैव मार्क दिस थिंग्स कि जो तुम्हारा पूरा इसके बिहाइंड होगा, राइट। मतलब ये एक डिजाइन है, राइट। इस डिजाइन के बैक में लेआउट होता है, एंड इसके ऊपर हम जितने एलिमेंट्स डाल रहे हैं वो व्यूज होते हैं। इनफैक्ट अगर अभी अभी लाइक लग रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग विल बी गोइंग इनटू लाइव कोडिंग आल्सो, तो उसमें भी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो well, what is a layout? Layout defines the structure for a user interface in your app. Okay, for example, like तुम्हारे पास ये 6 व्यूज हैं, ठीक है। लाइक आई वुड से ये 6 बटन्स हैं, ठीक है। अब 6 बटन्स को इस ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया हुआ है, अगर तो इस ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसके बिहाइंड एक पर्टिकुलर लेआउट आना चाहिए। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेआउट, यू विल सी, ठीक है। तो अगर उस पर्टिकुलर लेआउट में हम अरेंज करेंगे, मतलब वो लेआउट यूज करेंगे, तभी हम ऐसे इसको अरेंज कर सकते हैं। देन वी हैव व्हाट इज अ व्यू। अ व्यू इज समथिंग व्हिच अ यूजर कैन सी और इंटरैक्ट विद, लाइक आई सेड, जैसे ये तुम यहाँ पे जो भी दिख रहा है, राइट, बटन है या कार्ड है या इवन ये होम जो टेक्स्ट है, होल्ड टू रीडर है, ओके, ऑल दीज आर टेक्स्ट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस एंड इलस्ट्रेशन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यही है कि जो तुम्हारे व्यूज है वो मतलब जैसे टेक्स्ट भी हो सकता है, image हो सकता है, ऑल दीज थिंग्स विल बी यूजिंग आल्सो, ठीक है। तो आई गेस दिस इलस्ट्रेशन इज आल्सो लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। तो ये व्यूज हो गए, और इसके बिहाइंड तुम्हारे लेआउट होता है, जिस लेआउट में तुम डालते हो उस व्यू को, वही चीज़ है। ओके, सो यू कैन सी लेआउट उसके पीछे होता है, बटन या मतलब व्यूज जो है उसके ऊपर आते हैं। ओके, सो ओके, सो वी हैव टाइप्स ऑफ लेआउट। सो बेसिकली लेआउट के कुछ टाइप्स होते हैं, ओके। लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट एंड कोऑर्डिनेटर लेआउट, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मेजर 4 टाइप्स यही होते हैं। एंड क्योंकि हम इस इन सेशंस में जितने भी मतलब जो भी एप्स बनाएंगे उसमें बेसिकली हम लीनियर और रिलेटिव लेआउट ही यूज करने वाले हैं। एंड इवन टू स्टार्ट ऑफ, लाइक अगर हम बिगिनर हैं तो लीनियर एंड रिलेटिव आर द बेस्ट टू स्टार्ट ऑफ, I believe. So we'll be going through what are linear and relative layouts, and constraint layout comes after that. We'll not be studying this in this session. Okay, so let's move forward with linear versus relative. Okay, so basically linear layout है, ठीक है। तो पहले definition देख लेते हैं क्या है, फिर explanation. Okay, so linear layout is a view group that aligns all children in a single direction vertically or horizontally. Okay, like अब इसमें कुछ नई नई terms हैं, what is a view group, ठीक है, children क्या है। Okay, so ऐसे होता है कि like एक layout होती है, right। तो लेआउट में हम व्यूज को डालते हैं, लाइक मैंने पहले बताया कि लेआउट एज अ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के अंदर हम व्यूज को अरेंज करते हैं। तो बेसिकली लीनियर लेआउट जो होता है तुम्हारा, उसमें हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उन व्यूज को अरेंज कर सकते हैं। हम थे यहाँ पे लीनियर वर्सेस रिलेटिव लेआउट। ओके, तो लीनियर में थे हम, राइट। सो लीनियर लेआउट का मैंने बताया कि व्यूज को हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, राइट। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिएंटेशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल तुम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल 2 डायरेक्शंस होते हैं, तो लीनियर लेआउट को हम 2 डायरेक्शंस में अलाइन कर सकते हैं। बेसिकली मतलब लीनियर लेआउट में हम जितने भी व्यूज डालते हैं, ठीक है, वो इन 2 डायरेक्शंस में जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे जब हम लाइव कोडिंग करेंगे, विल सी हाउ दैट वर्क्स। ओके, सो बेसिकली इन शॉर्ट फिर से, what is a linear layout? Linear layout is you can say container, views डालते हैं लेकिन वो views एक particular direction में ही आ सकते हैं, like either vertically or horizontally. Okay, and one more thing, linear layout की default orientation, like अगर हम orientation नहीं specify करते हैं तो वो horizontal ही होती है। Okay, so the next one is relative layout. So relative layout is a view group that displays child views in relative positions. Okay, so I'll also talk about what is a child view, what is a parent view. Okay, so even view group also अभी आएंगे terms आएंगे और आगे, so मैं बताऊंगा क्या चीज़ है ये। So relative layout is a view group that displays in relative positions. मतलब relative positions is I guess obvious, मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यू के रेफरेंस में या किसी के रिस्पेक्ट में तुम एक पोजीशन पे डाल रहे हो। लाइक मतलब मेरा एक व्यू ए है, ठीक है, एक व्यू बी है, मुझे क्या करना है कि व्यू बी को मुझे व्यू ए के राइट में रखना है। तो देयर इज सम प्रॉपर्टी कॉल्ड
टू द राइट ऑफ। ओके, हम देखेंगे क्या होता है। तो हम ऐसे अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव इज लाइक रिलेटिव पोजीशंस में हम रखते हैं व्यूज को। ओके, सो moving to the next, we have playing with views and properties. Okay, so basically अब views में जाते हैं कि कैसे कैसे views होते हैं और उनकी properties को भी देखेंगे, ठीक है। So these are some examples of views. You have text view, image view and a button, ठीक है। ये कुछ views के examples हैं जो तुम ऐप में देख सकते हो। Like a text view like hello Android. Okay, so this is a text view like कुछ भी कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट को होल्ड करने वाला दैट इज अ टेक्स्ट व्यू। देन अगर आपको ऐप में कोई इमेज डालनी हो, ओके, सो दैट उसके लिए तुम इमेज व्यू यूज कर सकते हो। ओके, एंड लाइक इमेजेस के भी लाइक टाइप्स होती है, जेपीजी एंड पीएनजी एंड ऑल, ये सब होल्ड करेगा वो अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वी हैव अ बटन, ठीक है। बटन मतलब यू जस्ट प्रेस अ बटन एंड देन सम फंक्शनैलिटी गेट्स परफॉर्म। सो बटन उसके लिए हो गया, ठीक है। दीज आर द व्यूज, वन ऑफ मतलब सम एग्जांपल्स ऑफ व्यूज। ओके, सो द नेक्स्ट इज XML. सो XML इज बेसिकली एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो हम एंड्रॉयड में डिज़ाइंस जो भी बनाते हैं, लाइक कुछ भी जो भी तुम्हें दिख रहा है उसको तुम कहाँ पे कोड करते हो, यू जस्ट कोड इट इन XML लैंग्वेज। ओके, सो मे बी आप में से किसी को HTML आती हो, तो XML इज लिटिल बिट लाइक दैट ओनली। और नहीं भी आती तो दैट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। विल बी सेइंग क्या है कैसे है। ओके, सो ओके, सो डोंट बी स्केयर्ड, इट्स इजी, राइट। सो ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे एक छोटा सा मैंने कोड स्निपेट लिया हुआ है, ठीक है। इसमें अभी डोंट बी स्केयर्ड ये क्या है सब, आई जस्ट टेल यू वन बाय वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ व्यू। ओके, तो अभी मैंने पहले बताया कि लाइक टेक्स्ट व्यू हो गया, बटन हो गया और लाइक इमेज व्यू हो गया, ये सारे व्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो दिस इज अ व्यू। ओके, टेक्स्ट व्यू, ये इसका एक इसका पार्ट हो गया, ये बटन हो गया, इसका पार्ट हो गया। ओके, एंड ठीक है। तो नेक्स्ट इज व्यू ग्रुप। ओके, सो व्हाट इज अ व्यू ग्रुप? लाइक बेसिकली जो तुम्हारा कंटेनर होता है ना, मैंने बताया कंटेनर, आई टोल्ड यू अबाउट लेआउट्स। तो बेसिकली लीनियर लेआउट है ना, जैसे दैट इज अ व्यू ग्रुप ओनली। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि लीनियर लेआउट जो होता है जब हम कोड में जाएंगे, बेसिकली इट एक्सटेंड्स अ व्यू ग्रुप क्लास। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज एक्सटेंड, इसकी टेंशन मतलब अभी हम देखेंगे सब क्या है। ओके, सो लीनियर लेआउट एंड टेक्स्ट व्यू बटन। ओके, सो इससे पहले भी हम आगे जाएं कुछ और चीज़ें, पेरेंट एंड चाइल्ड व्यूज। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि लीनियर लेआउट जो है, ये लाइक मेरा सपोज एक डिज़ाइन है, ठीक है। मतलब जैसे ये मैंने कोड लिखा है, तो इस कोड के करस्पॉन्डिंग एक डिज़ाइन होगा, ठीक है, मतलब जो मुझे दिखेगा। तो बेसिकली लीनियर लेआउट जो हो गया वो उसका पेरेंट हो जाता है उस डिज़ाइन में, व्यू। तो व्यू क्या है यार, देखो हमने पहले देखे थे ना, टेक्स्ट व्यू देखा था, इमेज व्यू देखा था एंड ऑल। तो बेसिकली उसका ये कोड पार्ट है, ठीक है। टेक्स्ट व्यू ऐसे दिखता है, बटन ऐसे दिखता है। ओके, एंड ये सब क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं। ओके, देन यू हैव अ व्यू ग्रुप। तो मैंने बताया था लेआउट होता है, लेआउट के अंदर हम व्यूज़ को डालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्यू ग्रुप जो होता है वो, दिस इज योर लीनियर लेआउट इज अ व्यू ग्रुप। ओके, तो व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं, इट्स जस्ट एग्जैक्टली अ लेआउट। अब हम जब हम कोड करेंगे तो मैं तुम्हें कोड में दिखाऊंगा कि लीनियर लेआउट जो होती है, एक व्यू ग्रुप नाम की क्लास होती है, उसको एक्सटेंड करती है। अभी तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, व्हाट इज अ क्लास और व्हाट इज एक्सटेंड्स, ये सब दीज ऑल कम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी तुम में से बहुत लोग मे बी न्यू होंगे प्रोग्रामिंग में, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, अभी जस्ट विल फोकस ऑन द डिजाइन पार्ट। ओके, तो ओके, सो नेक्स्ट इज पेरेंट एंड चाइल्ड व्यूज। ओके, सो यहाँ पे अगर इस कोड स्निपेट की बात करूँ, तो लीनियर लेआउट इज अ पेरेंट। ओके, एंड उसके अंदर मैंने अगर टेक्स्ट व्यू और बटन रखे हैं तो वो उसके चाइल्ड होते हैं, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड तो आगे समझ आता है, लाइक यू कैन से चाइल्ड जो है पेरेंट से है। सो बेसिकली टेक्स्ट व्यू एंड बटन आर अ पार्ट ऑफ दिस लेआउट, जैसे मैंने कहा था कि कंटेनर में हम व्यूज को डालते हैं, राइट। सो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। ओके, सो द नेक्स्ट इज व्यू आईडीज। सो आईडी क्या होती है? बेसिकली जैसे हमें कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, सपोज मेरे पास बटन है एंड बटन के क्लिक पर मुझे कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, लाइक आई वांट टू डिस्प्ले अ टेक्स्ट और आई वांट टू मूव टू अ नेक्स्ट पेज। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि मुझे उस व्यू को
मेरी कॉटलिन के कोड में रेफरेंस करना होता है, ठीक है। मतलब मुझे अगर बटन पे कोई फंक्शन डालना है तो उस बटन को एक बार रेफरेंस करना पड़ता है। तो रेफरेंस हम कैसे देते हैं, एक आईडी देते हैं। तो बेसिकली किसी भी व्यू के लिए, इनफैक्ट हम जैसे लीनियर लेआउट है, इसको भी हम आईडी दे सकते हैं अगर हमें उसका काम हो। तो किसी भी व्यू को हम एक आईडी दे सकते हैं। बेसिकली ये एक होता है उसका फॉर्मेट, हम कैसे आईडी देते हैं, @+ ID स्लैश के बाद हम कोई भी आईडी दे सकते हैं जो हमें सही लगे। लाइक टेक्स्ट व्यू है, मैं उसको टेक्स्ट/व्यू हम ऐसे दे सकता हूँ। ओके, सो दीज आर आईडीज। आईडी हम these are just user defined and IDs की रेफरेंस बनाते हैं। मतलब बेसिकली आईडी क्यों दे रहे हैं, हम एक व्यू में आईडी देते हैं उसको रेफरेंस देने के लिए कॉटलिन कोड में, ठीक है। उसके बाद वी हैव मैंडेटरी लेआउट एट्रीब्यूट्स। तो ये क्या होता है, सो जैसे व्यू है, सपोज यू कैन जस्ट हैव एन इमेजिनेशन, लाइक सपोज एक बटन है, ठीक है। एंड तो बटन की एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी, राइट। तो बेसिकली लेंथ एंड विड्थ ये कुछ मैंडेटरी प्रॉपर्टीज है जिनके बिना वो व्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर तुम देखो, इट्स मेंशन लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट। सो बेसिकली यही हो गया तुम्हारा विड्थ और हाइट, जो वो उस व्यू की मैंडेटरी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो दीज कैन वैरी, लाइक एक समथिंग लाइक जैसे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, सिर्फ एक व्यू भी होता है, सिर्फ व्यू। तो उससे लाइक वी कैन यूज दैट व्यू क्लास टू मेक सम लाइन्स ऑल्सो। हम उसको देखेंगे क्या होता है, वो कोई इशू नहीं है। ओके, सो मैंडेटरी लेआउट एट्रीब्यूट्स आई कवर्ड कि तुम्हारी कुछ फिक्स चीज़ें हैं, विथ हाइट आर मैंडेटरी, वो तुम्हें डालनी ही डालनी है, उसके बिना तुम्हारा व्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर तुम XML में एक टेक्स्ट व्यू का कोड लिख रहे हो और वहाँ पे तुम हाइट और विड्थ मेंशन नहीं करते हो, तो दैट विल थ्रो एन एरर कि आपको हाइट और विड्थ मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, तो अब मैं इस कोड के अंदर थोड़ा सा आता हूँ। सो द फर्स्ट लाइन यू सी योर XML वर्जन एंड कोडिंग, ये सब कोई मतलब की नहीं है आपको, बट दीज आर रियली important to mention. Okay, then then we have XML/NS. This is nothing but namespace declarations. बस नाम है, टर्म सुन लो, तुम्हें अभी इससे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जस्ट लेट इट बी, ओके। और देन आई मेंशन ओरिएंटेशन। ओके, जब मैंने लीनियर लेआउट बताया था, आई मेंशन ओरिएंटेशन होती है, लाइक लीनियर लेआउट में हम जो व्यूज डाल रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकते हैं। तो दिस इज द वे यू मेंशन द ओरिएंटेशन ऑफ दैट लेआउट। ओके, मैं यहाँ पे वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल भी लिख सकता हूँ। देन मैंने अभी बताया था लेआउट एट्रीब्यूट्स का जो मैंडेटरी होती है, तो विड्थ और हाइट वैसे ही होता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैच पेरेंट एंड कंटेंट। ओके, सो इसके बारे में हम कोड में बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। जब हम अभी लाइव कोडिंग करेंगे उसमें देखेंगे। ओके, सो ओके आगे चलते हैं। एंड जितना भी यहाँ पे अगर आपको लगता है कुछ नहीं समझ आया, वी विल बी कवरिंग दैट इन द लाइव कोडिंग पार्ट। जस्ट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज, जो भी तुम्हारी लेआउट्स होती है, लाइक जैसे लीनियर लेआउट है, अगर मैं रिलेटिव भी यूज़ करता हूँ तो यहाँ भी टैग्स होते हैं। अगर किसी ने HTML पढ़ी हो तो उसे पता हो कि हम टैग से खेलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये टैग्स हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड टैग्स, ठीक है, TAG। सो जो भी तुम्हारी लेआउट होती है उसका एक ओपनिंग टैग होगा, उसका एक क्लोजिंग टैग होगा, उस टैग के अंदर तुम्हारे चाइल्ड व्यूज आते हैं, ठीक है। और जितने भी व्यूज होते हैं तुम्हारे, टेक्स्ट व्यू हो गया, बटन हो गया, इन सब में क्लोजिंग टैग की ऐसे जरूरत नहीं होती, सिर्फ ऐसे हम एग्जिट कर सकते हैं इसको। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द next part, that is time for some action. Okay, so we'll go to some action part now. We'll do some coding, and before that let's see, like I hope Android Studio सबने install कर रखा होगा। Okay, so how do you create a new project? You just go to create new project and यहाँ से तुम्हें एक empty activity select करनी है। What is an activity ये सब बता दूंगा मैं अभी, that's pretty easy. Then you have to give a name to your app. You can change that later on also. I'll just give it a study jams. Okay, and select your language as Kotlin, and that's it. यहाँ पे मिनिमम SDK है, सबसे अभी तुम्हें कोई मतलब नहीं क्या चीज़ है क्यों है ये, ठीक है। एंड जस्ट यू कैन फिनिश दिस। तो ये हमारा एडिटर है, यहाँ पर सारे ऐप्स बनते हैं। ओके, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज। यू हैव मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो में तुम्हारे पास काफ़ी कुछ है जो तुम यूज़ करके मतलब यू कैन डेफिनेटली मेक रियली गुड एप्स। बट ऑफ कोर्स एट द एंड तुम कैसे कोड लिखते हो, हाउ योर कोड इज, उसी पे डिपेंड करेगा। ओके, सो टू स्टार्ट विद, बेसिकली तुम्हें दो चीज़ पे फोकस करना आदित्य, है।
Rajat wants to say. Rajat wants to Yeah, say. yeah. Okay, go ahead. Uh, is he on Slido or what? Rajat, you can unmute. मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने की कल कोशिश की थी, तो उसमें पता नहीं एसडीके मिसिंग दिखा रहा है। बार बार मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, एसडीके मिसिंग आ रहा है। Okay, SDK. Well, yeah, देखो, मैंने वीडियो install योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। you can, अभी ठीक है? हाँ भैया। ओके, तो यार देखो, एंड्रॉइड स्टूडियो का इंस्टॉल करने का आपको पहले बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी अगर नहीं भी इंस्टॉल है, इट्स फाइन। आज इस सेशन के बाद विल सी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? सो डोंट वरी, अभी हम देखते हैं कि हाउ ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग। ओके, तो टेंशन मत लेना। ओके ओके, सो या सो बेसिकली हम यहाँ पर दो चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। जब भी तुम्हारी एक्टिविटी, एंड नाउ व्हाट इज अ एक्टिविटी फर्स्ट आई वुड से, तो बेसिकली जो तुम्हें दिखता है, यू कैन से कि एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी के अंदर तुम कोड लिखते हो, राइट? लाइक जैसे ये तुम्हारी एक्टिविटी है, ओके, ये तुम्हें दिख रहा है जैसे स्क्रीन है, राइट? ये एक एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी के अंदर तुम अपने जितने भी जो भी तुम्हें करना है अपनी ऐप में, वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, यू डोंट नीड टू रियली फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। अभी देखते हैं कि हाउ डू यू गो अहेड। ओके, सो दो चीज़ें हैं, XML है एंड KT फाइल है। ओके, तो KT इज योर कॉटलिन फाइल। ओके, तो यहाँ पे मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि कॉटलिन में यू विल बी कोडिंग योर लॉजिक, मतलब तुम्हें अगर बटन के क्लिक पे कुछ कराना है तो वो लॉजिक तुम यहाँ पे लिखोगे, ठीक है? ये सब होगा। तो आज हम मेनली XML में कोड करने वाले हैं, यहाँ पे फोकस करने वाले हैं, यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट है। आई जस्ट फर्स्टली चेंज दिस टू लीनियर लेआउट ओनली। ओके, इसको लीनियर लेआउट करते हैं एंड आई जस्ट रिमूव दिस। एंड यहाँ पे कुछ ये कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, दीज आर ओनली स्पेसिफिक टू कंस्ट्रेंट लेआउट ओनली, तो इसको हम आराम से हटा सकते हैं। ओके, सो अब थोड़ा एडिटर के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या है। सो लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास सारे पैकेजेस होते हैं, ठीक है? यहाँ पे यू हैव अ मैनिफेस्ट, ओके, यू हैव योर जावा फोल्डर। बेसिकली कॉटलिन जो है जावा के थ्रू ही है, सो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा लॉजिक वाला पार्ट जैसे मैंने बताया। देन यू हैव अ रिसोर्सेज फोल्डर। ओके, सो रिसोर्सेज फोल्डर में तुम्हारा सब कुछ होगा जो दिखने वाला कंटेंट है, या और एवरीथिंग रिलेटेड टू UI पार्ट। ओके, सो यहाँ पे चार फोल्डर्स दिख सकते हैं। यू कैन सी ड्रॉएबल, यू हैव अ लेआउट, मैप एंड अ वैल्यूज फोल्डर। ओके, सो ड्रॉएबल में क्या होता है, जहाँ पे तुम अपने विजिबल, यू कैन से विजिबल रिसोर्सेज लाइक इमेजेस डाल सकते हो, ठीक है? या वेक्टर इलस्ट्रेशन हो वो भी डाल सकते हैं। ओके, so those of you who don't know vector illustrations, you can just google it. It's very similar to an image only, but उसका बहुत अच्छा और improved version. Okay, then you have a layout. सो लेआउट जैसे मैंने बताया कि ये लेआउट फाइल है। ओके, एक्टिविटी मेन डॉट XML इज अ लेआउट फाइल। इसके अंदर हम वो कोड करेंगे जो हमें देखना है अपनी ऐप में। ओके, सो देन यू हैव अ मैप, डोंट रियली नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ मैप। देन यू हैव वैल्यूज, बेसिकली ड्रॉएबल, लेआउट एंड वैल्यूज आर द मेन थिंग्स हियर। तो अब इसमें कुछ चीज़ें लाइक कलर्स है, स्ट्रिंग्स है, थीम्स है। अब थीम क्या होता है, डार्क मोड होता है, जैसे डार्क थीम होती है, लाइट थीम होती है, वो सब यहाँ पे हम हैंडल कर सकते हैं। देन हैव कलर्स, तो मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भी व्यू है, सपोज टेक्स्ट व्यू है, या तुम्हारे पास कोई भी व्यू है, उसका तुम्हें कलर के साथ खेलना है, यू कैन जस्ट प्ले विद दैट इन द कलर्स फाइल। देन हैव स्ट्रिंग्स डॉट XML। अगर हम इनमें जाके भी देखें लाइक दिस, तो ये स्ट्रिंग्स की फाइल क्यों काम आती है अभी हम देखेंगे, ठीक है? देयर इज एक स्टैंडर्ड होता है, हम फॉलो करते हैं छोटा सा, तो that will be where we'll be using this file. Okay, so to start with, uh, सबसे पहले नेम स्पेस डिक्लेरेशन होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? अगर नहीं देंगे तो इश्यूज आएंगे। ओके, योर एडिटर विल थ्रो एरर्स। ओके, उसके बाद वी हैव दिस। Rohan, Rohan wants to say something. या गो अहेड। सर एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर समझा दीजिए। फोल्डर स्ट्रक्चर, हाँ, ओके, सो एंड थीम भी अगर लाइट हो पाए, क्योंकि दिख नहीं रही है थोड़ा। ओके, जस्ट अ सेकंड,
लाइक ये है तुम्हारे पास थीम्स का फोल्डर, थीम्स के फोल्डर में तुम्हारे पास यहाँ पे दो चीज़ें है, राइट। अब थीम जो होते हैं, जैसे तुम्हें पता है ना, डार्क मोड होता है या लाइट मोड होता है, या और भी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ अभी हम इसके साथ एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे जब अभी ऐप को लॉन्च करेंगे यहाँ पे एक चेंज करेंगे, तो हम देखना थीम्स में यही चेंज होता है। तो बेसिकली ऐप स्ट्रक्चर में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि यू हैव अ मैनिफेस्ट फाइल, मतलब मैनिफेस्ट का फोल्डर, इसके अंदर मैनिफेस्ट की फाइल होती है। मैनिफेस्ट की फाइल क्यों होती है, वहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक यू कैन डिफाइन परमिशंस, यू कैन डिफाइन द ऑर्डर इन विच योर एक्टिविटीज़ आर ओपनिंग। एक्टिविटीज़ तुम्हारे पेजेस है। अब एक्टिविटी को अगर तुम्हें बहुत सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना है, एक्टिविटी क्या है, एक पेज है जो तुम्हारे ऐप में दिख रहा है, ठीक है। देन यू हैव अ जावा फोल्डर, उसके अंदर बेसिकली तुम इस जो फर्स्ट फोल्डर होता है उसके अंदर वर्क करते हो, बाकी सारे फॉर टेस्टिंग पर्पसेज, ओके। तो मेन एक्टिविटी आई टोल्ड यू, यहाँ पे तुम अपना लॉजिक लिखते हो, ठीक है, जो भी तुम्हें अपने ऐप में फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है। देन यू हैव मेन योर रिसोर्सेज फोल्डर। रिसोर्सेज में फर्दर 4 फोल्डर्स होते हैं, ड्रॉएबल, लेआउट, मैप, वैल्यूज। ड्रॉएबल में यू कैन ऐड इमेजेस, वेक्टर इलस्ट्रेशंस एंड ऑल, ओके। देन यू हैव अ लेआउट फोल्डर। लेआउट वही है जहाँ पे तुम अपना डिज़ाइन डालते हो, ठीक है। यहाँ पे हम अभी कोड करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पे वो चीज़ आएगी। देन मैप एंड वैल्यूज, ओके। एंड वैल्यूज आई टोल्ड यू कलर्स एंड स्ट्रिंग्स के साथ अभी देखना, अभी हम कलर वगैरह चेंज करेंगे, स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, सो विल सी दैट, ओके। सो आई होप दैट इज क्लियर, ओके रोहन, ओके। सो द नेक्स्ट इज, मैं तुम्हें बताया था विड्थ और Alter, हाइट। can you हाँ, change the theme of the Android Studio? Like it's dark. Can you change it? okay. He was telling about the theme. Okay, just a second. I really forgot where to change the theme. Just a second. Uh, is it fine now? Yeah, it's fine. But these texts, just give me one Yeah, second. you can also increase the size of font. Yeah. I need to increase the size also. Just a second. Okay, so I hope that is fine. अभी Yeah. ठीक है, अभी सही है। हाँ बढ़िया। ओके, सो ठीक है। तो मैंने बताया था कि एक जो तुम्हारा व्यू होता है, व्यू के लिए कुछ मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, लाइक विड्थ एंड हाइट। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे लीनियर लेआउट है, ठीक है। अब अगर हम ये स्क्रीन देखें, इस एडिटर को देखते हैं एक बार, ओके। सो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारे XML का है ना, यहाँ पे तुम साथ साथ कोड भी कर सकते हो, जो जो भी तुम कोड करोगे यहाँ पे तुम्हें दिखेगा साथ साथ, ठीक है। सो ये लीनियर लेआउट है। इट सेज मैच पेरेंट फॉर योर विड्थ एंड मैच पेरेंट फॉर योर हाइट। अब इसका क्या मतलब होता है कि लेआउट विड्थ मतलब विड्थ ऑफ द स्क्रीन एंड लेआउट हाइट मतलब हाइट ऑफ दिस स्क्रीन। बेसिकली लेआउट है तो उस लेआउट के रेफरेंस में। अब मैच पेरेंट का क्या मतलब होता है कि पेरेंट, अब देखो लीनियर लेआउट का कोई पेरेंट नहीं है, तो लीनियर लेआउट का पेरेंट बेसिकली ये तुम्हारा पूरा का पूरा स्क्रीन है, ठीक है। तो मैच पेरेंट मींस जो तुम्हारा, अगर तुम इसमें विड्थ को मैच पेरेंट करोगे तो पूरी स्क्रीन के विड्थ को कवर करेगा, ठीक है। अगर तुम हाइट को मैच पेरेंट करते हो तो स्क्रीन की पूरी हाइट को कवर करेगा। अब वैसे ही एक टर्म थी रैप कंटेंट, तो अगर मैं यहाँ पे विड्थ को, यहाँ अभी हम इसमें नहीं चेंज करेंगे, टेक्स्ट व्यू को चेंज करेंगे, अभी देखना क्या होता है, ओके। सो वी हैव लीनियर लेआउट, राइट। सो टेक्स्ट व्यू का आई टोल्ड यू कि जिसमें हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं कोई भी चेंज कर दूँ, सपोज आई टाइप, ओके, मैं कुछ भी डालूंगा, द टेक्स्ट गेट्स चेंज। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, एक वार्निंग आती है, इसके बारे में बताता हूँ क्यों। यहीं पे आता है कि हम स्ट्रिंग फोल्डर क्यों यूज़ करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज रैप कंटेंट। अब देखो टेक्स्ट व्यू जो है ये रैप कंटेंट है, राइट। इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट ओके। सो आई होप दैट इज फाइन नाउ। तो अब देखो, अगर मैं इसके विड्थ को रैप कंटेंट से चेंज करके मैच पेरेंट कर दूँ, देन यू विल सी कि जो हेलो डेवलपर है वो पूरी की पूरी स्क्रीन, मतलब उसका जो व्यू की विड्थ है, हेलो डेवलपर एक टेक्स्ट व्यू है, उस व्यू की विड्थ
जो उस व्यू की विड्थ है वो उसको पूरी मैच पेरेंट करेगा। अब उसका पेरेंट क्या है, लीनियर लेआउट है, तो लीनियर लेआउट खुद मैच पेरेंट है, तो मतलब स्क्रीन की साइज को कवर करने वाला है, उसकी विड्थ। अब वैसे ही अगर मैं हाइट को मैच पेरेंट कर दूं, देख सकते हैं कि उसका हाइट जो है वो भी पूरा नीचे जाएगा। अब बेसिकली वो अंदर से वो वैसे ही अलाइन रहेगा, लाइक यू कैन से वो टॉप लेफ्ट में है। अब इसमें हम एक चीज़ आती है ग्रेविटी, ग्रेविटी को अब चेंज कर सकते हैं, तब वो हम इस व्यू के अंदर उसके पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर इसमें से कुछ ना समझ आए, वेल जो भी डाउट हो यू कैन आस्क, और यू कैन जस्ट पोस्ट देम ऑन स्लाइड आल्सो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले बता दूँ कि इट सेज हार्ड कोडेड स्ट्रिंग शुड यूज स्ट्रिंग रिसोर्स। तो बेसिकली ये छोटा सा स्टैंडर्ड है जो हमें फॉलो करना चाहिए जब हम अच्छी ऐप्स बनाते हैं, जब हम एडवांस ऐप बनाते हैं। तो बेसिकली जब भी हम कोई टेक्स्ट कहीं पे डालते हैं ऐसे, तो उससे हम हार्ड कोड करते हैं। हार्ड कोड मतलब जब भी हम हार्ड कोड करेंगे तो उसकी वैल्यूज फोल्डर में, जो स्ट्रिंग्स का फोल्डर है, यहाँ पे आ जाएगी उसकी वैल्यू। बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट क्लिक एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स। यहाँ पे हम रिसोर्स नेम और वैल्यू दे सकते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक ओके। ओके, तो अब वो कह रहा है ऐड स्ट्रिंग। ऐड स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि वो स्ट्रिंग फोल्डर को रेफरेंस कर रहा है। स्ट्रिंग फोल्डर में जाके ये एक उसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आ गई है, राइट। ओके, सो ये चीज़ें हैं। अब इसमें लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो सपोज टेक्स्ट है, अब इसमें हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लाइक टेक्स्ट का साइज हो सकता है, टेक्स्ट का कलर हो सकता है, ओके, ऐसी चीज़ें हैं। सपोज मेरे को टेक्स्ट साइज सेट करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली टाइप टेक्स्ट साइज, ओके, एंड यहाँ आई विल सपोज आई जस्ट डू 16 HP, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं देखने वाली, एंड उससे पहले आई जस्ट रीसेट दिस टू रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट, ओके। ओके, सो अब ये क्या है, SP क्या है, ओके। सो एक होता है SP, एक होता है DP। तो DP इज बेसिकली डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स एंड SP इज स्केलेबल पिक्सेल्स और स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स। अब ये क्या चीज़ है, तो सबसे पहले आता है पिक्सल क्या होता है, मतलब आई एल नॉट गोइंग टू वेरी डीप क्या चीज़ है ये, बट लाइक जैसे एटम्स होते हैं, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट। तो वैसे पिक्सल जो होता है तुम्हारी स्क्रीन में, जो भी तुम देख रहे हो अभी स्क्रीन में तुम देख रहे हो कुछ भी, तो उसके बिल्कुल रूट में जाओगे तो एक पिक्सल होता है, बहुत छोटा सा स्क्वायर होता है। तो वैसे ही पिक्सल जैसे है, तो यहाँ पर टेक्स्ट साइज को मेजर करने के लिए हम SP इज द यूनिट, ठीक है। स्केलेबल पिक्सल एक यूनिट है, उस टर्म्स में हम टेक्स्ट साइज को मेजर करते हैं। अब टेक्स्ट साइज अगर मेरे को इन जनरल बोलना हो, फॉन्ट साइज, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फॉन्ट साइज जितने भी व्यूज है, लाइक इमेज व्यू है या बटन है, ठीक है, इन सब के लिए हम DP यूज करते हैं। DP इज व्हाट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स, ओके। तो अब सपोज इसमें एक बटन डालते हैं, जस्ट एक सिंपल थिंग, लाइक आई जस्ट राइट अ टैग, आई ओपन वन टैग बटन। अब जैसे मैंने बटन डाला, आई क्लिक एंटर, एंड अब देखो बटन एक व्यू है, और व्यू के लिए ये दो चीज़ें मैंडेटरी आई टोल्ड यू, विड्थ एंड हाइट। तो आई जस्ट गिव वन थिंग, सपोज अभी मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ, ठीक है। हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, ओके, लाइक मैं इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, सपोज 36 DP बाय 36 DP, ओके। तो भी, तो ये अपने हिसाब से ऐसे अलाइन हो रहा है, यू कैन सी। अब एक चीज़ और देखो, मैंने क्या बताया था कि लीनियर लेआउट की डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होती है, ओके। सो ये मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं स्पेसिफाई किया, तो वो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन डाल दूँ, सपोज वर्टिकल, तो तुम देख सकते हो कि टेक्स्ट व्यू के नीचे बटन आ जाएगा, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने उसको प्लेस किया हुआ है। अब पेरेंट में, मतलब लीनियर लेआउट पेरेंट है, टेक्स्ट व्यू और बटन उसके चाइल्ड है, ओके। अब सपोज अगर मैं बटन को यहाँ से हटा दूँ और टेक्स्ट व्यू के ऊपर ले आऊँ, क्या होगा। अब जिस मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, बटन पहले आ गया, टेक्स्ट व्यू बाद में हो गया, यही चीज़ है, ओके। सो ये है हमारे एक्सेल में बेसिक्स, ओके, कि हम एक व्यू डिफाइन व्यू के साथ खेल सकते हैं। अब सपोज मुझे कुछ करना है, लाइक सपोज मुझे हेलो डेवलपर है, मुझे उसका कलर चेंज करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट गिव दिस एट्रीब्यूट टेक्स्ट कलर, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर्स होते हैं, कलर फोल्डर में कुछ कलर्स डिफाइंड है, बट सपोज मैं कोई भी यूज़ कर लूँ, या आई कैन डिफाइन माई कलर ऑल्सो। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज ये कलर है,
अभी कहाँ पर है, कलर्स फोल्डर में हम जाएंगे, यू कैन सी दीज आर कलर्स डिफाइंड. ओके, अब सपोज I have to reference this color. Okay, purple 200. So what I will do is, just a second, I can type purple 200. तो you can see कि उस टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया. ठीक है, अब ये तो कलर उसमें डिफाइन किया हुआ है. अब मुझे अगर अपना कलर डिफाइन करना है तो इफ समवन नोज व्हाट इज अ हेक्स, हेक्स कोड होता है, तो कलर्स के लिए हम हेक्स कोड यूज करते हैं. तो बेसिकली अगर मुझे ब्लैक कलर देना है तो आई कैन यूज हैश and we have 6 zeros and that is a black color. Okay, तो ये हो जाता है. Okay, one thing I missed out is context. You don't need to worry about what is the context, but it's, you can say कि XML से हम अगर हम अपनी Kotlin फाइल को लिंक कर रहे हैं, Kotlin फाइल को हम लिंक कर रहे हैं, you can say XML से, that is where you give the context. Basically मेन लिंकिंग यहाँ होती है, वो हम कल बात करेंगे क्यों होती है, कैसे होती है. Okay, सो आई थिंक इतना क्लियर है. किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन सी. एनीवन? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Someone has doubt too. Okay, yeah, sure. I Yeah, guess. Kushak, you can Yeah. unmute. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पर सेशन क्या अभी लंबा चलेगा? Well, even I don't know the time. Well, I guess 15 to 20 minutes more. 15 minutes. थैंक यू. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. So just a second. We were here, right? So next concept comes is, this is an important concept when you are designing your layout. This is margin and padding. ठीक है, तो मे बी फर्स्ट ईयर वालों के लिए थोड़ा सा दिस कैन बी न्यू, और अगर मे बी सेकेंड ईयर में है या किसी ने भी अगर वेब डेवलपमेंट की हो तो उसको पता होगा कि व्हाट इज अ मार्जिन एंड पैडिंग. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या है, एक आई हैव टेकन अ व्यू. ओके, तो आई हैव डिफाइंड लेंथ ऑफ व्यू एंड योर विड्थ ऑफ व्यू. ओके, सो मेरा जो व्यू है वो ये है, जहाँ मेरा रेड डॉट चल रहा है. ठीक है, ये मेरा व्यू है. अब ये व्यू की बाउंड्री है. ठीक है, जहाँ पे चल रहा है ना मेरा रेड डॉट, वो व्यू की बाउंड्री है. अब इस बाउंड्री से लेकर जहाँ तक मेरा व्यू स्टार्ट नहीं होता है, मतलब ये टेक्स्ट व्यू मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, DXC गाइड है, ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो इतना डिस्टेंस हमारा जो होता है वो पैडिंग होता है. ठीक है, अब व्यू के बाहर से हम मार्जिन दे सकते हैं. लाइक मेरे को व्यू के बाहर अगर कोई और व्यू बनाना है तो उस व्यू के रेफरेंस में मैं मार्जिन देता हूँ. ठीक है, तो दिस इज मार्जिन एंड पैडिंग. ठीक है, तो ये व्यू हो गया. आई रिपीट, ये एक व्यू है, जितने में रेड डॉट चल रहा है वो एक व्यू है. एंड व्यू की बाउंड्री से लेकर जहाँ तक व्यू स्टार्ट नहीं हो रहा है वो पैडिंग है. मतलब अगर मुझे टेक्निकल टर्म्स में बोलना है, इंटरनल स्पेसिंग जो होती है ना व्यू के अंदर की स्पेसिंग होगी वो पैडिंग होती है, और बाहर से तुम जितनी स्पेसिंग दे रहे हो वो मार्जिन हो जाती है. ठीक है, तो इसके लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. मतलब ये मैंने छोटा सा इलस्ट्रेशन डिज़ाइन किया था. लाइक यू हैव दिस थिंग, एक पार्क है, पार्क को एक फेंस से सराउंड किया हुआ है. ठीक है, तो एक स्पेसिंग मैंने दे रखी है यहाँ पे. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम अज्यूमिंग इस कि ये जो फेंस है ना पूरा का पूरा, ये मेरा व्यू है, ये मेरा पूरा व्यू है. एंड उसके अंदर जो मैंने स्पेसिंग दी है वो पैडिंग है. पैडिंग वाली स्पेसिंग को जब मैंने कवर किया ऐसे, तब मेरा व्यू एक्चुअली मिलता है मुझे, इंटरनल एरिया. ओके, एंड इस फेंस के बाहर जितना भी पोर्शन होगा, मतलब अब मार्जिन भी मैं किसी चीज़ के रेफरेंस में दूंगा, राइट. हो सकता है मैं पेरेंट के रेफरेंस में दे रहा हूँ. पेरेंट मतलब जैसे मैंने बताया था लीनियर लेआउट हो गया, या मैं किसी और व्यू के रेफरेंस में मार्जिन दे सकता हूँ. तो मार्जिन दैट इज अ थिंग, मतलब व्यू के बाहर की जितनी डिस्टेंसिंग हो गई वो हो जाती है मार्जिन. ओके, सो next thing is the last thing for this session, building your first Android app. Sorry. So बनाते हैं, and what we'll be making is this thing. So you can see a design, small thing. It's a happy birthday app,
and we'll be seeing how you use a layout, how you insert images in your app, and then we'll also see how that app actually works. We'll be launching it in the emulator. Okay, so let's go ahead again, and yeah. So I just need this thing, just a second. Okay, yeah. So we'll reference the design from here, right? We have this thing. माई फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप है, वो एक टेक्स्ट व्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक इमेज है, वो क्या हो जाएगा, इमेज व्यू। एंड देन यू हैव हैप्पी बर्थडे डेवलपर, दैट इज ऑल्सो टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, आई बी यूजिंग अ लीनियर लेआउट। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करेंगे, एंड वो क्यों यूज़ करेंगे, उसका क्या यूज़ है, वो भी हम देखते हैं। ओके, सो जैसे मेरे पास यहाँ पे है, what I can do is I need my first Android app here, so I can just replace this text by my first Android app, right? So you can see that that thing comes here, right? Okay, so next एक प्रॉपर्टी आती है। अब इसको मैं हार्ड कोड भी कर सकता हूँ एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू चली जाएगी, राइट? अब ये भी टैग्स है, स्ट्रिंग का एक टैग होता है, उसमें नेम डिफाइन करते हैं, दैट इज़ योर आईडी। जो आईडी यहाँ पर आ रही है, उस आईडी से हम रेफरेंस करते हैं। आईडीज़ के बारे में हम कल भी देखेंगे कि आईडीज़ को कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, सो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस टेक्स्ट व्यू को इस स्क्रीन के सेंटर में रन करना है। स्क्रीन के सेंटर में नहीं, बल्कि इस एक हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल में मेरे को लाना है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिफाइन अ लेआउट ग्रेविटी है, राइट? जब मैंने लेआउट ग्रेविटी दिया, अभी क्या है लेआउट ग्रेविटी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेविटी। एक सिंपल ग्रेविटी होती है, एक लेआउट ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेआउट ग्रेविटी यूज कर रहे हैं। तो ग्रेविटी भी मतलब कितने तरह की होती है, लाइक दे कैन बी सेंटर, दे कैन बी जस्ट सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल एंड ऑल। ओके, सो सेंटर हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी अगर मैं यूज करता हूँ तो क्या होगा कि लीनियर लेआउट के हॉरिजॉन्टल सेंटर में जाएगा। दैट इज आई गेस ऑब्वियस, राइट? हॉरिजॉन्टल है एंड हॉरिजॉन्टल के सेंटर में, राइट? सो ये ऐसे हो गया। ओके, सो ये हो गया। अब सपोज मुझे ऊपर से थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, मतलब मेरे पास ये व्यू है एंड व्यू के ऊपर से मुझे कुछ स्पेसिंग चाहिए, बट आई कैन डिफाइन इज अ मार्जिन। अब यहाँ पे मैं व्यू के बाहर से स्पेसिंग चाहता हूँ तो मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे व्यू के अंदर की स्पेसिंग चाहिए तो मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी। ओके, सो देखते हैं, लाइक अगर मुझे पैडिंग देनी है, सपोज आई वांट, अब मैंने पैडिंग डाला तो यू कैन सी कितनी तरह की पैडिंग है, राइट, लेफ्ट, एंड, स्टार्ट, बॉटम, टॉप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ओके, सो इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब हम पैडिंग यूज़ करते हैं, राइट, तो अगर मैंने सिर्फ पैडिंग डिफाइन किया, जो सेकेंड ऑप्शन है, अगर मैंने सिर्फ पैडिंग डिफाइन किया तो मैं बाकी ऑप्शंस पर डिफाइन करूँ ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि पैडिंग विल बी यूज। लेकिन अगर उसके अलावा मैं आई कैन separately define all the paddings for right, left and top and bottom. Okay, so अगर मुझे suppose top padding देनी है, I can give suppose 8 dp. What you can see is कि view की top जो है, top की boundary तो ऊपर अलाइंड है, मतलब तुम्हारा जो स्क्रीन का टॉप है वहीं से अलाइंड है, बट 8 dp का जो डिस्टेंस है वो इंटरनल डिस्टेंस है। मैंने कहा था कि पैडिंग इज और इंटरनल स्पेसिंग, एंड जो मार्जिन जो है वो बाहर से होती है। मार्जिन देखते क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप देता हूँ, राइट, 8 dp, तो क्या हुआ कि उसकी बाउंड्री शिफ्ट हो गई, मतलब बेसिकली जो व्यू हो गया, व्यू के ऊपर से आई गॉट एन 8 dp ऑफ स्पेसिंग, ठीक है। एंड अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड कि dp जो है हर व्यू के साथ आएगा, हर व्यू की किसी भी डायमेंशन में आ सकता है, बट एक्सेप्ट फॉर द फॉन्ट साइज, लाइक टेक्स्ट साइज जो है वो हमेशा स्केलेबल पिक्सल होगी। ओके, ओके, सो इस ऐप के लिए सपोज आई विल गिव 32 dp। ओके, सो ओके, अब अदर थिंग इज कि उसको हम टेक्स्ट साइज देते हैं, राइट? सो आई कैन गिव अ टेक्स्ट साइज, लाइक आई विल गिव okay, I defined the text size already, so I can't use it. So I'll just give it, say, 32 sp again. Okay, or yeah. So my first Android app इतना बड़ा हो गया ये,
ठीक है। उसके बाद अब मुझे इमेज डालनी है, राइट। तो ये एक इमेज है, आई हैव दैट इमेज विद मी। सो क्या करना होता है इमेज डालने के लिए कि यू जस्ट हैव टू टेक द इमेज एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट इन योर ड्रॉएबल फोल्डर। मैंने क्या कहा था कि ड्रॉएबल फोल्डर में हम अपनी इमेजेस और वेक्टर इलस्ट्रेशंस को डाल सकते हैं, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज जस्ट टेक दिस image and I will just drag it and drop it to my drawable folder. Okay, so यहाँ पे आता है, I just click on refactor and just अगर ये आता है git का, अगर किसी के सिस्टम पे git इंस्टॉल होता है, just you can cancel it, right? And yeah, so drawable folder में you can see कि मेरे पास birthday image आ गई अपनी, ठीक है। Okay, next मुझे image डालनी है, ठीक है। तो अब मैं हूँ linear layout में, टेक्स्ट व्यू है, अब उसके नीचे मेरे पास इमेज व्यू आ जाएगी। आई कैन जस्ट टाइप इमेज व्यू। मैंने जैसे इमेज व्यू पे क्लिक किया, फिर वही विड्थ एंड हाइट मुझे डिफाइन करनी है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं विड्थ को ले लेता हूँ मैच पेरेंट एंड हाइट को वेल सपोज 256 dp। ओके, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इस पर ऐसे ही क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये इमेज व्यू का एरिया है। अब मुझे इमेज व्यू में कुछ इमेज भी दिखानी है, तो इमेज दिखाने के लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं SRC। ओके, SRC में हम जाते हैं एंड वी कैन जस्ट रेफरेंस आर बर्थडे इमेज। यू कैन सी कि ड्रॉएबल में ये चीज़ आ जाएगी। ओके, उस पर क्लिक किया एंड यू सी कि हमारी इमेज आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ है, लाइक अगर तुम लोग इसको जब करोगे एक इशू आ सकता है कि जब तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो अपनी इमेज को, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक ऑप्शन है ड्रॉएबल V24, ठीक है, उसमें नहीं करना है। अगर तुम V24 में करोगे तो मे बी तुम्हारे पास यहाँ पे ना दिखे, तो यू हैव टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू अ ड्रॉएबल फोल्डर ओनली, नॉट द V24 वर्जन। यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो IC लॉन्चर फोरग्राउंड V24 गिवन है, तो मैं इससे मतलब नहीं है अभी। ओके, तो या सो अब देखो मुझे यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। अब मैं इस व्यू को लेके चल रहा हूँ, व्यू के ऊपर मुझे कुछ स्पेसिंग चाहिए, तो व्हाट आई कैन गिव इज सिंपली टॉप मार्जिन। ओके, व्हाट आई कैन गिव इज simple top margin, suppose 48 dp, or we can give more like 64 dp. Okay, तो जैसे मैं इसको चेंज करूँगा वो 64 dp की लेंथ से वो नीचे आ जाएगा उसके। ओके ओके, वन मोर थिंग, लाइक अगर किसी ने Ujjwal has some doubt. हाँ Ujjwal, या जो Ujjwal, you can speak. सर ड्रैग एंड ड्रॉप बता सकते हैं एक बार? या I'll just delete this one. Okay, first. Okay, देखो what you need to do is simply कि तुम्हारे पास जो भी इमेज होगी, you have that. Okay, just a second. I need to get that image again. Just a second. You have the image, right? And मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। Okay. So क्या करना है कि you have the image, right? इमेज को उठाया, अपने स्टूडियो में ले गए and add it in your drawable folder. Okay. तो यहाँ पर you will see कि यहाँ पे drawable आ गया and just you have to click refactor. That's it. मैंने एक चीज़ बताई थी V24 वाली, मतलब किसी के सिस्टम में हो सकता है कि जब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ वो V24 का ऑप्शन दे, तो V24 में नहीं करना है, नहीं तो नहीं आएगा उस समय। ओके, सो ये आ गया। नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट ऐड द SRC and assign it to birthday image. Okay, so that comes. So clear हो गया उज्जवल, how you are just dragging and dropping into a drawable folder, मतलब तुम्हारी कोई भी इमेज है या कोई भी illustration है। यस सर, यस, ओके। और सर ये एंड्रॉइड वाला फंक्शन एंड्रॉइड स्टूडियो में चल नहीं रहा, एरर शो कर रहा है। ओके, हम ले लेंगे, स्पीड आउट भी देख लेंगे। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये आ गया। अब नेक्स्ट वी हैव या हैप्पी बर्थडे डेवलपर। ओके, सो
what I will do is I just take this text view and copy this and paste it here. Okay, so इसको अब हम क्या कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं. I can just keep it like what was the text? It was happy birthday. Okay, so ये आ गया. Okay, so अगर किसी ने कोई प्रोग्रामिंग की होगी पहले से, उसे पता होगा कि हाउ डू चेंज टू न्यू लाइन. यू कैन जस्ट यूज अ न्यू लाइन कैरेक्टर. तो मैं डाल दी तो ये ऐसे आ जाएगा. अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि यू कैन सी ये लेफ्ट अलाइंड है. तो अगर मुझे टेक्स्ट व्यू को उसके व्यू के अंदर ही मतलब उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, बट आई कैन यूज इज देयर इज अ एट्रीब्यूट कॉल्ड टेक्स्ट अलाइन, यू नो, टेक्स्ट अलाइनमेंट, एंड जस्ट क्लिक एट सेंटर एंड वैसे हो जाएगा. ठीक है. So let's bring it more to what it looks like. इसकी spacing और बढ़ाते हैं. You can just make it well say 84 dB. Okay, that's fine. अब इसको रन करना है. So ये हमारा डिज़ाइन बन गया, राइट. अब डिज़ाइन बन गया. अब बेसिकली तुमको रन कराना है तो you have two options. Either you can use an emulator or you can use a physical device. ठीक है. अगर फिजिकल डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू इनेबल USB debugging. यू कैन जस्ट गो टू योर सेटिंग्स, वहाँ से ऑप्शन आ जाता है. एंड एमुलेटर में रन करना है, सो यू हैव दिस प्ले बटन ओवर हियर ऑन द टॉप व्हिच सेज रन ऐप एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट. अब यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड होगा. तो बेसिकली ग्रेडल बिल्ड में क्या हो रहा है कि तुमने जितना भी कोड किया है वो कंपाइल होता है. ओके, अब जो भी अगर फर्स्ट ईयर में भी तो मैं कंपाइल का भी ना पता हो तो अभी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं. व्हाट इज कंपाइल या जो भी होता है, ठीक है. सो डोंट नीड टू वरी. तुमने कोड लिखा, जस्ट नीड टू रन योर ऐप एंड वेट टिल द ग्रेडर बिल्ड्स. ओके, तो आई हैव द एमुलेटर है. तो एमुलेटर इज वेयर योर ऐप विल लॉन्च. ठीक है. तो कैन समवन जस्ट कंफर्म इफ द एमुलेटर इज विजिबल? Tejas has found out. Yeah, Tejas. Yes, sir. Good evening. Good evening. Sir, I want to ask that can you please repeat how the photo of this app has been accommodated here? So because at that time moment my PC was logged out from the system, so I was not able to continue hear that portion. Okay, so okay, I'll just tell you what is happening. Like Yes, suppose sir. you have your image file, right? What you need to do is just drag and drop. अगर मेरी image file desktop पे पड़ी है, I just take the image file and drag it to my studio and उसको जाके drawable में place करना है. जब drawable folder के ऊपर drop कर दोगे तो अपने आप उठाएगा. ठीक है. वहाँ से फिर refactor का option आता है. मतलब it's just a small edit box and you just click refactor and वो add हो जाएगा. Once your drawable के अंदर तुम्हारी बर्थडे इमेज आ जाएगी, दैट्स इट. तुम्हारा मतलब प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ गया. अब इसको रेफरेंस करना है तो यू कैन यूज दैट SRC टैग. ओके, SRC में जब तुम लाइक यू कैन सी अगेन I'll type SRC like birthday like this. Is that clear? Yes, yes, sir. Now it is clear. Thank you, sir. ओके, सो प्ले किया एंड यू हैव द ऐप राइट है. अब एक चीज़ देख सकते हो कि यू हैव द स्टडी चैम्प्स थिंग राइट है एंड इसको हम एक्शन बार बोलते हैं. ठीक है. अभी हमें ये नहीं चाहिए. ठीक है. तो आई टोल्ड यू हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे. सो व्हाट वी कैन डू इज हम थीम्स फोल्डर में जाते हैं. थीम्स में जाते हैं. तो यहाँ पे Aditya, can you explain what emulator is? Like many of them. श्योर. सो हमारा फिजिकल डिवाइस होता है, राइट. फिजिकल डिवाइस. अब अगर तुम्हें टेस्टिंग करनी है, बेसिकली जब हम एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे हैं तो हम एक्सटेंसिव टेस्टिंग करते हैं, राइट. तो टेस्टिंग करने के लिए या मतलब इनफैक्ट ऐप को रन करने के लिए तुम्हें एक मीडियम चाहिए. जैसे कोई भी ऐप तुम फिजिकल डिवाइस में चलाते हो तो एक ये जो तुम्हारा एमुलेटर दैट इज अ वर्चुअल डिवाइस जो तुम्हारे सिस्टम के अंदर चलता है. ठीक है. तो ये जो एमुलेटर है डिफ़ॉल्ट एमुलेटर है एंड्रॉयड स्टूडियो का. अलग से भी आते हैं थर्ड पार्टी, यू कैन यूज देम आल्सो. सो एमुलेटर इन शॉर्ट इज अ वर्चुअल डिवाइस जहाँ पे तुम अपने ऐप्स को रन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, एनीथिंग. ओके. Okay, I hope that is clear. So yeah, so I was telling you how can you hide this action bar. तो इसको एक action bar बोलते हैं. जस्ट गो टू themes. यहाँ पे एक थीम डिफाइन होती है.
दिस थिंग. सो थीम को बस चेंज करना है. यहाँ पे दैट इज डार्क एक्शन बार. यू जस्ट नीड टू डू नो एक्शन बार. यहाँ पे अगर किसी को ना समझ आए ये क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, सो डोंट वरी. मैंने बस बताया कि अगर मुझे ये एक्शन बार हाइड करना है तो हाउ डू यू डू इट. यहाँ पे एक डार्क एक्शन बार की थीम डिफाइन थी, मैंने बस उसको नो एक्शन बार किया है. आई जस्ट रीरन दिस. जब उसकी रीरन करूँगा फिर से ग्रेडर बिल्ड होगा एंड यू विल सी कि गायब हो गया. सो या, so this is your, I hope that is fine, your first Android app. And then again यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि इसको हार्ड कोड है. तो हार्ड कोड एक्चुअली हम यही इसीलिए करते हैं कि जस्ट टू फॉलो सम स्टैंडर्ड्स, यू नो. लाइक हार्ड कोडिंग का फ़ायदा क्या है कि स्ट्रिंग्स का एक फोल्डर है, रिसोर्सेज है. यहाँ पे तुम्हारे ऐप की जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी, मतलब हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स सबके सब यहाँ पे डिफाइन हो जाती हैं. इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर मुझे एक ही स्ट्रिंग है, सपोज हेलो डेवलपर है, ये मुझे स्ट्रिंग अपनी ऐप में 5 जगह पे यूज़ करनी है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट सेम थिंग एट 5 प्लेसेस, व्हाट आई कैन डू इज स्ट्रिंग फोल्डर में आए, वहाँ पे मैंने ये डिफाइन कर दिया एंड देन आई कैन जस्ट यूज द रेफरेंस फॉर दैट. वही सेम चीज़ आ जाएगी. ओके. ऑल्सो डिबगिंग वगैरह में भी दैट eases out the things, right? So I think XML में मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है. We made our first Android app also and you guys can just see कैसे हुआ है. एंड किसी को कोई डाउट हो तो या गो अहेड. कोई है क्या, कोई डाउट, एनीथिंग जो कुछ भी ना समझ आया हो, एनीथिंग? Ujjwal, you can unmute. सर आपके कोड में एरर शो हो रहा है मगर ये सक्सेसफुली रन क्यों कर रहा है? ये चीज़ दिस वन यस सर. बेसिकली वाइट थीम है, ये लाइट थीम है एक्चुअली. इस वजह से दिस इज नॉट एन एरर, दिस इज अ वार्निंग. ओके, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे इसको हार्ड कोडिंग करनी होती है. तो ये हार्ड कोडिंग इज नॉट मैंडेटरी. तो ये नहीं है कि अगर आप हार्ड कोडिंग नहीं करोगे तो ऐप रन नहीं. जस्ट यू कैन यूज एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स अगेन एंड दैट वार्निंग गोज अवे, राइट. अब यहाँ पे ये चीज़ जो है, वेल दैट इज यहाँ पे ऐसे हो रहा है, जिसको मैं फिर से रन करूँगा तो दैट विल बी गेट रिजॉल्व्ड. ओके. Okay, so serial build sometimes takes time. Okay, and yeah, that gets resolved. तुम strings folder में आके देखोगे तो ये चीज़ यहाँ पे फाइन है, right? So ये हो गया. कुछ छोटी सी चीज़ें और बता दूँ कि आदित्य, दो लोग और हैं, अभिषेक और कंचन का डाउट ले लो. या जस्ट वन लास्ट थिंग कि XML जो है तुम्हारी, दैट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो अगर मैं यहाँ पे L को कैपिटल कर दूँ तो दैट इज़ इनवैलिड, यू नो. मतलब वो ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे. सो यहाँ पे केसेस का ध्यान रखना पड़ेगा. एंड अदर थिंग इज़ कि यहाँ पे जब भी हम IDs डिफाइन करते हैं, ठीक है, IDs के बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा कि IDs डिफाइन करने का यू कैन फॉलो अ सिंपल पैटर्न, दैट इज अ स्टैंडर्ड पैटर्न. मुझे ID डालनी है, आई कैन जस्ट यूज दिस ऐड प्लस ID. एंड अगर मैं सपोज ID का नेम दे रहा हूँ टेक्स्ट स्पेस व्यू, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड कुछ ऐसा होता है. लाइक मतलब तुम कुछ भी दे सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी. सो तुम टेक्स्ट कैपिटल वी भी कर सकते हो, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि इसको फॉलो करो. एंड या ओके, सो डाउट्स वन बाय वन. ओके अभिषेक. सर ये केस सेंसिटिव है इनसेंसिटिव है? केस सेंसिटिव मतलब, केस सेंसिटिव का क्या मतलब हुआ कि अगर तुम केसेस को चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा ना. मैंने अगर कैपिटल L कर दिया, या अगर मैं इसको छोड़ो, जस्ट लीव इट, इसको मैं ये कर देता हूँ सपोज सेंटर, तो ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. इट इज थ्रो एन एरर, कैन नॉट रिजॉल्व द सिंबल. ठीक है, केस सेंसिटिव मतलब यही हुआ ना कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द केसेस यहाँ पर, राइट? यस सर, यस. ओके. ये टेक्स्ट भी दो बार लिखना जरूरी है? एक ही ब्लॉक में नहीं हो सकता कि एक आधा ऊपर जो लिखना है और आधा जो नीचे लिखना है एक ही ब्लॉक में लिख दें, ऊपर वाले टेक्स्ट व्यू में ही? जैसे एक ही चीज कई बार लिखना पड़ रहा है. वेल एक ही चीज़ तो मैं कई बार लिखनी पड़ रही है, दैट्स फाइन. बट ये एक व्यू है ना, ये एक इंडिपेंडेंट व्यू है, और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट व्यू है. तो मैं दो अलग अलग व्यूज़ को बना रहे हैं. भले मतलब बेसिकली सेम चीज़ है, टेक्स्ट व्यू ही है,
बट तुम्हें इंडिपेंडेंटली उसको बनाना है, उसकी प्रॉपर्टीज। अगर मुझे सपोज इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, सपोज मुझे इसका टेक्स्ट साइज बढ़ाना है, मतलब उससे बड़ा करना है, या इसका कलर चेंज करना है, मतलब अपनी व्यू की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, अपना अपनी अपनी हाइट, अपनी वेट, सब कुछ होगा ना। तो एक में कैसे कर सकते हैं? थिंक ऑफ इट। अगर अगर मतलब हमको सब चीज सेम चाहिए, जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक जैसे चाहिए, प्रिंट जैसे लाइन करना है वैसे ही चाहिए, पहले तो और वन डे बीच में इमेज आ गया, तो हाँ, ऐसे कर सकते हैं। कैन यू जैसे रिपीट? sir, if we want to like this print only that my first Android app and like this happy birthday, I want everything same, but image is also in between. So can we do that in a single text view block? नहीं हो सकता टेक्स्ट व्यू। या देखो टेक्स्ट व्यू के ब्लॉक में कैसे कर सकते हो? सी टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट के लिए, राइट? टेक्स्ट व्यू देखो दो चीजें, हर व्यू की एक क्लास होती है, ठीक है? टेक्स्ट व्यू है वो टेक्स्ट को ही होल्ड करेगा, एंड जो मैंने व्यू यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है, ये मैंने जो व्यू डिफाइन किया वो एक इंडिपेंडेंट व्यू होगा हमेशा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक ब्लॉक डिफाइन कर दिया और उसी ब्लॉक में मैं दो डिफरेंट प्लेसेस के टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कभी, क्योंकि यू हैव जस्ट वन प्रॉपर्टी एंड्रॉइड टेक्स्ट, ठीक है? एंड इस टेक्स्ट के अंदर तुम्हें उस पर्टिकुलर व्यू की ही टेक्स्ट पास करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें मल्टीपल, अगर मुझे यहाँ पे 5 व्यूज रखनी है सपोज, ठीक है, अगर मुझे 5 व्यूज रखने हैं, आई विल हैव टू पास 5 टेक्स्ट व्यूज, वन आफ्टर अनदर। अगर मुझे सेम चीज करनी है, सपोज आई विल टेक दिस टेक्स्ट व्यू एंड जस्ट कॉपी इट वन आफ्टर द अदर, तो मेरे को ये अब कैसा देखो, कोई लूप से नहीं हो सकता है कि मतलब ये वैल्यूज पे चेंज होती रहेगी उसमें कुछ ऐसा, मतलब स्ट्रिंग को कहीं तो से इंपोर्ट कर ले, ऐसा कुछ? देखो व्यूज जब तुम बना रहे हो दैट इज वन थिंग। अब जैसे तुमने कहा लूप की बात करें, चलो ठीक है, लूप भी अगर तुम्हें करना है, ठीक है, तो लूप भी तो तुम एक पर्टिकुलर व्यू में ही कर सकते हो ना। अब सपोज मेरे पास ये हैप्पी बर्थडे डेवलपर है, राइट? मैं कॉटलिन में गया, मैंने एक फॉर लूप बनाया, ठीक है, मुझे चाहिए कि हर आइटरेशन में एक नई टेक्स्ट वैल्यू डिस्प्ले हो, वो मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी मैं उसमें लॉजिक लिखूंगा, तो वो चीज़ भी तो सिर्फ एक इस व्यू के अंदर ही आएगी ना। मतलब सपोज हैप्पी 1, हैप्पी 2, हैप्पी 3, हैप्पी 4, प्लीज योर लूप। तो लूप जब चल रहा है तो इसी के अंदर चेंज होगा ना, कि नहीं? बताओ। ये लूप सही। में लूप में मैं अलग अलग में कैसे करता हूँ? जस्ट थिंक ऑफ इट। और हाँ, लाइक मल्टीपल व्यूज की बात हो रही है, लाइक आई वुड से जस्ट वन मोर थिंग, कि जैसे लिस्ट होती है, राइट? तो लिस्ट के बारे में हम कल बात करेंगे, होती है, तो हम पेज को स्क्रॉलेबल बना सकते हैं। तो अभी लिस्ट की बात नहीं हो रही है, बट हाँ, अगर जो मल्टीपल, जैसे सपोज एक लिस्ट है, तो लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो यू आर ट्रेवर्सिंग थ्रू देम, और या उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो लिस्ट को हैंडल करने के लिए अलग क्लासेस होती हैं। यू हैव लिस्ट व्यू, यू हैव रिसाइकलर व्यू एंड ऑल, ये सब और पढ़ेंगे तो you'll get to know. Okay, so this is it. Does that solve your doubt? मतलब अभी भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, राइट? मेरा डाउट ये था कि मतलब जैसे कि हम लोग अपना काम को छोटा करने के लिए, मतलब किस जैसे स्ट्रिंग जो हम लोग को करना है, जहाँ पे दिखाना है, उसको एक एरे में कहीं रख देते हैं, जैसे जैसे हम लोग बाकी ऐसे प्रोग्रामिंग में करते हैं नॉर्मली, तो वैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये आई की वैल्यू ये है तो ये प्रिंट होगा, 2 की वैल्यू ये है तो ये प्रिंट होगा स्ट्रिंग में। ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते इसमें? यार हम समझ रहा हूँ मैं तुम्हारा, दैट इज टोटली फाइन, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, बट इस केस में मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक जो व्यू है, ठीक है, एक व्यू एक इंडिपेंडेंट व्यू होता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि मैंने ये डिफाइन किया कि ये मेरी स्क्रीन पे एक पोजीशन पे जाएगा, मतलब मैं जब भी ऐप रन करूंगा यहाँ पे एक व्यू आएगा। अब इस व्यू के अंदर मैं कुछ भी डिस्प्ले करा सकता हूँ, ठीक है, बट ये चीज़ इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ इंडिपेंडेंट है। मैं इसको एक अलग आईडी दे देता हूँ, इसको अलग आईडी दे देता हूँ, एंड उसके ऊपर मैं अलग अलग काम कर सकता हूँ। एंड जैसे तुमने कहा एरे में तुम करा लो से, बट हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? ऐसे नहीं होगा ना। अभी तो मैं स्क्रीन डिफाइन कर रहा हूँ ना, जब स्क्रीन डिफाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू आएगा, उसके नीचे एक इमेज व्यू आएगा, उसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू आएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली यार, मतलब या। ओके सर। ओके, नेक्स्ट डाउट, वी हैव वन मोर। थैंक यू, थैंक यू। Yes, Akansha, you had a doubt? So, Yeah.
सर जैसे आपने बोला कि अगर हमें जैसे हैप्पी बर्थडे डेवलपर अगर हमें 5 टाइम्स प्रिंट कराना हो तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग इट हम उसको हार्ड को कर सकते हैं स्ट्रिंग्स में एंड देन फिर वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। तो सर जो हम रेफरेंस लेंगे उसका स्टेटमेंट क्या होगा, वो मतलब रेफरेंस का स्टेटमेंट क्या होगा वो बता दीजिए। रेफरेंस, तो रेफरेंस हम हम क्या कॉपी में, लिखेंगे? हाँ, सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, राइट। अगर मैं इसको आईडी दे दूँ तो वेल आई विल बी कवरिंग दैट फॉर पार्ट टुमारो, ओके। बट ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आईडी दी, एंड सपोज मैंने एक आईडी दे दी इसको, सपोज टेस्ट, ओके। तो ये एक आईडी आ गई, राइट। अब ये इसकी आईडी है, मुझे आईडी को रेफरेंस करना है, तो बेसिकली मैं कॉटलिन में जाता हूँ। अब वेल अभी अभी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आई वुड से, क्योंकि मैंने कल के कंटेंट में कवर कर रखा है हाउ डू रेफरेंस दैट आईडी। सो आई गेस कल पूछो डाउट, अगर ना समझ आए दैट वुड बी फाइन। ओके सर, ओके या सर, कल पूछ लीजिए। या थैंक यू सर। ओके, सो ओके, सो हमने Okay, ऐप Rajat, बनाई, या ओके, Rajat, you can unmute. सर वो आपने एक स्ट्रिंग वाला पार्ट बताया था @स्ट्रिंग करके, वो वाला पार्ट थोड़ा सा समझ नहीं आया, वो उसका क्या यूज है, कैसे, वो ओके, बता दीजिए जरा। ओके। सो मैं इसको फिर से लिखता हूँ, ठीक है, राइट। टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट, राइट। एंड यहाँ पे मैंने एक न्यू लाइन का सिंबल दे दिया जिससे वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। सो टेक्स्ट मैंने डिफाइन कर दिया, राइट। अब यहाँ पे अगर तुम देखो एक वार्निंग आती है, हार्ड कोड स्ट्रिंग शुड यूज @स्ट्रिंग रिसोर्स। तो एक स्ट्रिंग रिसोर्स होता है यहाँ पे, string.xml फाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली तुम्हारे ऐप में जितनी भी तुम हार्ड कोडेड का मतलब है कि जो तुम स्ट्रिंग खुद से लिख रहे हो, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है ना हैप्पी बर्थडे डेवलपर, जैसे मैं कुछ भी लिख ले, लाइक एक्शन बार होती है, यहाँ पे सपोज एक्शन बार होता, एक्शन बार पे लिखा होता है व्हाट्सएप। तो अगर व्हाट्सएप लिखा है तो वो व्हाट्सएप एक स्ट्रिंग है, व्हाट्सएप एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, राइट। दैट इज यू कैन से एक यू कैन से वो है स्टैंडर्ड है जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए, कि मतलब नहीं भी बेसिकली एक करोगे। डायरेक्टरी है जहाँ पे हम जो स्ट्रिंग्स मतलब जो टेक्स्ट डालेंगे उसे वहाँ पे डिफाइन करते रहना है, ऐसा। हाँ हाँ, ऑल्दो यहाँ पे जैसे वार्निंग आती है, यू कैन जस्ट क्लिक एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, वो खुद से डिफाइन हो जाएगी, वहाँ पे जब जाके देखो ये आ जाएगा। और पहले से भी डिफाइन कर सकते हो, फिर यहाँ पे रेफरेंस हो जाएगा। तो बेसिकली @स्ट्रिंग, जैसे @स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग डायरेक्टरी को रेफरेंस कर रहा है। अब यहाँ पे एक @ड्रॉयबल है, वो ड्रॉयबल को यहाँ पे रेफर कर रहा है, ठीक है, वही चीज़ है। ओके, आई गेस दैट क्लियर सर। थैंक या सो नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद। Okay, so I hope that was fine, and I guess we can take this on slide also, right? So बता सकते हो यहाँ पे जिसको कैसा लगा, how was your first Android app जिसने first time अभी start किया है, and yeah, guys you can go to slido.com and enter the code TSC kite, or yeah. Then we'll have a small quiz also. That will be interesting. Yeah. Okay, great. कोई ऐसा हो कि जिसको कुछ ना समझ आया हो, या मतलब बिल्कुल ऊपर से निकल गया हो, वो भी डाल सकता है यहाँ पे, आई गेट टू नो, एंड वी कैन इंटरैक्ट आल्सो, नो इशू। ओके, नाइस, बाउंसी, दैट्स नाइस वर्ड। ओके ओके, नाइस। सो अगर किसी को कोई डाउट्स हो, ओके थोड़ा कंफ्यूजन, नाइस, कोई बात नहीं। ओके, नो वरी, जिसको कुछ ना समझ आओ, राइट, वो आई गेस वी कैन हैव दैट क्वेश्चन आंसर सेशन, राइट। ओके, सो वी हैव वन क्वेश्चन हियर। Will we learn linking in this session? For example, we click the button. Yes. So we'll be learning this thing in the next session. Okay. And then we can explain the wrap content and match parent. Okay. So let's see this once again. Okay. Match parent and wrap content. Okay. So I will work on
जस्ट वन थिंग, ओके आई जस्ट रिमूव दिस। तो मैं बस ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे चल रहा है। सो you have your my first Android app, okay? I'll reduce the text size to 16, okay? And अब देखो, तो there are two things, wrap content, match parent. तो wrap content का क्या मतलब हो गया कि जो तुम्हारा कंटेंट है, टेक्स्ट व्यू के अंदर कंटेंट है माय फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप, तो उस कंटेंट को रैप करेगा। रैप का मतलब कवर करेगा, राइट? तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। अगर मैं इसको मैच पेरेंट करता हूँ, दैट गोज लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पे जैसे वो लेफ्ट में चला गया, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट अलाइनमेंट दे सकता हूँ, एंड आई कैन गिव इट एट सेंटर, वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो वो तो चलो कोई इशू नहीं। सो विड्थ एंड हाइट मैच पेरेंट। अब वो एक व्यू है, व्यू की जो बाउंड्रीज हैं वो पेरेंट को मैच करेंगी। देन यू हैव हाइट, यू हैव हाइट एज रैप कंटेंट, मतलब जो उसकी हाइट है, मतलब ये हाइट है, वो उसके कंटेंट को रैप करेगी। अगर मैं उसको मैच पेरेंट कर दूँ, सो इट गोज लाइक दिस, राइट? वो पूरे पेरेंट को कवर करेगा। पेरेंट, आई टोल्ड यू कि पेरेंट यहाँ पे लीनियर लेआउट है, राइट? तो लीनियर लेआउट खुद मैच पेरेंट है, तो दैट मीन्स स्क्रीन की साइज को कवर करने वाला है वो, ओके। सो आई होप दैट क्लियर्स द थिंग्स। इसको खुद से करोगे, खुद से ट्राई भी करोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट, ओके। एंड okay, so you will get the code on GitHub, okay, and the emulator of Android Studio work only on Intel processor. Okay, we can see this doubt again, okay. Let's move to the quiz, okay. So guys, just go to Slido and type DSC kite again, and you'll have a small quiz session, okay. जो भी हमने आज पढ़ा उसके बारे में होगा, and रिकॉल करने में मजा आएगा, ओके। Okay, I can see people are joining. Okay, I can see one guy, मुझे सब आता है, thanks. So let's see, I hope मुझे सब आता है tops the leaderboard today. Okay, so let's get started. So guys, you can see the first question on your phones or your laptops. Okay, I have 1 minute to answer this, and I guess everything has been covered. So जो भी doubt होगा we can take it parallelly, right? You have the screens on, you have the questions on your screen, and yeah. So I'll just speak out the question. Which of the following XML attributes is absolutely correct? Does not throw an error or warning. मतलब warning भी ना आए और error तो नहीं आनी चाहिए, right? So yeah. Okay, so nice. A lot of responses. Okay, 27, nice. So okay, so let's start with the first option. I told ID define करने का एक proper method है @+ ID, and @+ ID will use slash and then your ID name, okay. So option A must not be correct. Then you have text size as 16 dp. So I told you that font size and text size, these are all scalable pixels, so it should be 16 sp over here, okay. Then you have Android layout width equals to wrap content, that is, well, wrong again, because L and W, I told you that XML is a case sensitive language. So the correct option must be orientation, that is vertical. Okay, so that is the correct option. And yeah, so guys, you have your next question. We'll have just 3 questions and then we can wrap up the session. Yeah.
Okay, so we haven't covered relative layout, but I told you how you use the relative layout कि तुम चीज़ों को कैसे उसमें अलाइन कर रहे हो, मतलब किसी के रिलेटिव में होता है. लाइक आई जस्ट टेलिंग यू कि इसमें हमें रिलेटिव लेआउट एक टर्म है, तो मे बी यू कैन थिंक दैट आई हैवंट कवर्ड रिलेटिव लेआउट, राइट? सो या, okay, nice. So yeah, so let's start with the first option. Okay, well, I'm surprised to see that the first option has so many responses. Well, those of you who would have listened to me clearly, I told them that linear layout की default orientation horizontal होती है and not vertical. So you have to choose the correct choices. Okay, and then is density independent pixel is a unit measurement of text size. Then it is again false because text size की unit होती है scalable pixels, right? Then of course the third option has to be correct. 4 views arranged horizontally can have relative layout as the parent layout. तो मैंने बताया था कि relative layout में क्या होता है कि तुम किसी एक व्यू या पेरेंट हो सकता है, व्यू हो सकता है, तो व्यू के रिलेटिव में कोई भी व्यू प्लेस कर सकते हो. या दिस इज एक्चुअली पॉसिबल. सो अगर किसी को डाउट हो कि ये क्यों है सही ऑप्शन, सो वी कैन have an interaction on that. Okay, and then text view is just a view and not a view group, because view group तुम्हारे layouts होते हैं. Okay, and text view is just a view. Okay, so just one last question and then we can wrap up. So third option is correct, and yeah, so this question will require a little bit of imagination. Okay, to allow no other view to enter within 16 dp of an image view from any direction, which of the following can be used as an attribute? मतलब तुमने एक इमेज व्यू को डिफाइन किया, तुम चाहते हो कि कोई और व्यू उसके 16 dp के मार्जिन या सॉरी 16 dp की डिस्टेंस में कोई ना आ पाए. सो व्हाट यू कैन डू बेसिकली, इट्स लाइक कि तुम चलो ओके, लेट्स डू दिस आंसर देन वी कैन सी. Okay, great. Well, nice to see that I have so many responses for the correct answer. Okay, so what's happening is padding equals to 16 dp has to be the correct answer, because तुम क्या कर रहे हो कि 16 dp के डिस्टेंस के अंदर किसी को नहीं आने देना है. मतलब तुम बेसिकली जो भी तुम्हारा इमेज है, इमेज की हर साइड मतलब 4 डायरेक्शन, इमेज की चारों डायरेक्शन में तुम 16 की स्पेसिंग दे रहे हो, लेकिन उस व्यू के अंदर इंटरनल स्पेसिंग दे रहे हो. इंटरनल स्पेसिंग इज बेसिकली योर पैडिंग. सो the option has to be correct, and okay, so we have the leaderboard, right? Okay, so whoever is boss, congratulations, and awesome man, जो भी है, ठीक है. एक्चुअल नेम यूज कर सकते तो और बेटर होता. वी कुड हैव इंटरैक्टेड. ओके, सो yeah, okay, we have a few questions, I guess. Previous theme is better. Well, yeah, I actually thought that. How to join the quiz? Well, the quiz is over. Sorry. Okay, so for the emulated out, we can have an interaction after the session. Okay, you can approach our Telegram group. Okay, and we can interact there. And just before you guys leave, that's done. And yeah, so just wrapping up the session now for the day one. You guys need to go to this link g.c/android/studyjams. Okay, I'll just cover it very quickly now. इस लिंक पे जाना है. यहाँ पे तुम्हें टोटल कंटेंट मिलेगा सीखने के लिए. ओके, तो मैंने बताया था कि गूगल का एक कोर्स होता है समथिंग लाइक दैट एट द स्टार्टिंग. सो यू कैन जस्ट गो टू g.co/android/studyjams. Okay, and once you go to this link, you will have 2 pathways. Well, basically it's one for new and other for the prior programming experience. So यहाँ पे जो भी new है वो यहाँ पे start कर सकता है, और जो भी जिसको पहले से थोड़ी बहुत आती है, they can start off with the second one. So basically you have to go to start course and then you have units. Okay, तो यहाँ पे units को जब तुम cover करोगे तो तुम्हें badges मिलते हैं, right? तो जैसे जैसे तुम
कवर करते जाओगे, सारे बैजेस तो मिलेंगे. You can have your badges on your Google developer profile, and I can just show you that. You just need to go to google.dev, and here you will have your profile. You just go to your my profile. You just need to ensure that you are signed in with a Google account, and you can see all your badges. So you can just even share them on your LinkedIn or some on any other social medias, right? So यही है, मतलब यहाँ से तुम कोर्सेज कवर कर सकते हो. यहाँ पे गूगल की कोलैब्स होती हैं, बहुत अच्छे से समझाया होगा. एंड आज के सेशन में जिसको कुछ भी ना समझ आया हो या मतलब लगा हो कि देयर इज सम इशू, यू कैन ईदर अप्रोच आवर टेलीग्राम ग्रुप or even you can go to the code labs. That should be fine. Okay, and I guess that's it for today.